the trick for drawing the structure and remember the name of the oxo acids. Students, first of all, what is oxo acid? Oxo acid. Oxo acids means what, students? It possesses hydrogen and oxygen both with the central atom. Means here you are having one O bond, means whatever the oxo acids, अगर phosphorus के है तो P के साथ में O bond होगा और दूसरा जो bond होता है वो OH bond होता है. If it is oxo acids of sulfur, then in place of here phosphorus, it is having the sulfur. Here also the same way. If it is oxo acids of nitrogen, then in place of phosphorus, here it is a nitrogen. So oxo acid means which possess the hydrogen and oxygen both, that is known as the oxo acid. Now we are starting the oxo acids of phosphorus. As you know, some of the oxo acid, the suffix is us and in some of it is ic acid. So where the us acid is suffix attach and where the suffix ic acid is attached, that I will explain you. This is a suffix which we are adding us acid or ic acid. Now students, the first of all we have to find the parent atom, means the parent acid. Here we cannot say the parent atom, we say the parent acid. Now here the parent acid is H3PO4. H3PO4. This H3PO4, that is the parent acid. Now, where we'll say the meta, where say the pyro, or where we'll say the hypo. सफिक्स के साथ में प्रीफिक्स भी लगता है, कहीं कहीं पर मेटा लगाते हैं, कहीं पर पायरो लगाते हैं, कहीं हाइपो होता है. तो वो भी मैं यहाँ पर आपको सिखाने की और समझाने की कोशिश कर रही हूँ स्टूडेंट. सो दिस इज अवर पैरेंट एसिड, दैट इज H3PO4 एंड द नेम ऑफ दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. द नेम इज ऑर्थोफॉस्फोरिक acid. Now student, remove the 1 mole of water molecule from this. You have to remove the 1 mole of water molecule. So minus H2O. Here you will get HPO3. This is the metaphosphoric acid. HPO3, suppose n number of molecule, n number of chain it is, then it is known as meta. मतलब आपको मेटा कहाँ लगता है वो मैंने यहाँ समझाया. मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज योर मेटाफॉस्फोरिक एसिड. पैरेंट एसिड आपको याद रखना है, H3PO4 इज योर पैरेंट एसिड जिसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. अब वो जो पैरेंट एसिड है उसमें से 1 वाटर मॉलिक्यूल अगर हम रिमूव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, HPO3 मिलता है, जिसे हम कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड. सो मेटा
means remove the one water molecule from the parent acid. Then you will get the meta. Now, second. This is our first point. Now the second point. Take 2 mole of parent acid. 2 mole of parent acid. टू मोल ऑफ पैरेंट एसिड. स्टूडेंट्स 2 मोल ऑफ पैरेंट एसिड मतलब आपको यहाँ पर क्या करना होगा? आपका पैरेंट एसिड है H3BO4. So twice. So now here you will get H6P2O8. H6P2O8. Now again remove the 1 mole of water molecule. Remove 1 water molecule, H2O. So here 6 minus 2 means you are getting H4. P2O8 minus O1 means O7. H4P2O7. Now here आपने पैरेंट एसिड को डबल किया और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद आपको जो मिलता है that is known as pyro. Means here it is a pyro. The name of this that is known as pyrophosphoric acid. स्टूडेंट ये मैं आपको एक एसिड के बारे में बता रही हूं जो आप देख सकते हो यहां पर. पैरेंट एटम, रिमूव 1 वाटर मॉलिक्यूल, यू विल गेट द मेटा. पैरेंट एसिड उसको डबल करो, डबल करने के बाद उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एक रिमूव करो, देन यू विल गेट द पायरोफॉस्फोरिक एसिड. नाउ we'll get the pyrophosphoric acid by removing the 1 water molecule. अब यहाँ पर आपको दिखा रही हूं मैं स्टूडेंट्स. अब तक हमने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया था, अब हम उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करते हैं और उसके बाद आगे क्या मिलेगा दैट विल स्टडी. नाउ हियर H4P2O7 उसके अंदर से हम रिमूव करेंगे only 1 oxygen atom. 1 oxygen will remove, then we'll get H4P2, 7 minus 1 means P2O6. अब यहाँ पर आपको जो मिला that is hypophosphoric acid. ऑक्सीजन आपने पायरो में से ऑक्सीजन रिमूव किया तो आपके पास में जो मिलता है वो हाइपो होता है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. सो हियर इट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. दिस इज ऑल्सो योर इक एसिड. करेक्ट स्टूडेंट? Did you understand clearly? Now, again we are going with our parent atom. यहाँ तक का मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपरली. सबसे पहले हमने पैरेंट एटम लिया जिसका नाम था ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. उसके में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो हमें मिला मेटाफॉस्फोरिक एसिड. उसके बाद में हमने 2 पैरेंट एसिड लिए
2 मोल पैरेंट एसिड लिए और वो 2 मोल पैरेंट एसिड में से 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो हमें मिला पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और वो पायरो में से 1 ऑक्सीजन रिमूव करने से हमें मिलता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब फिर से हम जाते हैं हमारे पैरेंट एटम में। दिस इज योर थर्ड ट्रिक। नाउ अगेन विल गो विद द parent acid. What is the name of the parent acid, students? H3PO4 orthophosphoric acid. So parent acid, that is H3PO4. This is our parent acid. Now in that we are adding the oxygen. यहाँ हमने सब रिमूव किया है, अब हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। सो हियर यू गेट H3PO5। 4 ऑक्सीजन थे, उसमें से आपने 1 ऑक्सीजन ऐड किया, देन यू विल गेट H3PO5। अब तक यहाँ पर आपके पास में स्टूडेंट्स था एक एसिड, अब जो है आपके पास में वो H3PO5, that is peroxomonophosphoric acid, H3PO5. The name is peroxomonophosphoric acid. स्टूडेंट, ये जो मैं पहले आपको नाम लिखना और नाम याद करना सिखा दूं, उसके बाद में मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी ट्रिक बता दूंगी। सो ट्रिक टू ड्रॉ एंड रिमेंबर द ऑक्सो एसिड स्ट्रक्चर। इसके बेसिस के ऊपर से आप कोई भी ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो और नेमिंग भी कर सकते हो। ये एग्जाम्पल मैं सिर्फ फॉस्फोरस का लेके बता रही हूँ, बट यू कैन डू सेम विद द नाइट्रोजन ऑल्सो, यू कैन गो विद द सल्फर ऑल्सो, यू कैन गो विद द हेलो एसिड्स ऑल्सो। ये सब आप इसी ट्रिक से कर सकते हो। तो यहाँ आपने 1 ऑक्सीजन पैरेंट के अंदर ऐड किया, पैरेंट एसिड के अंदर, तो आपको मिला पेरोक्सोमोनोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसके बाद में से अब हमें निकालना है उसमें से अब हम जाते हैं अस एसिड के अंदर। हमने इक एसिड के एग्जाम्पल लिए हैं, अब हमें लेना है उसमें से अस एसिड। For the same, again we have to go with the parent acid. Now, trick to understand ऑक्सो एसिड्स अस एसिड के लिए अब हम देखते हैं। अब हमें फिर से लेना है पैरेंट एसिड। हमारा पैरेंट एसिड क्या था स्टूडेंट? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। सो हियर अगेन वी आर राइटिंग पैरेंट एसिड। पैरेंट एसिड इज H3PO4। अब H3PO4 में से हम 1 ऑक्सीजन निकालते हैं। नाउ रिमूव द ऑक्सीजन।
Here you get H3PO3. स्टूडेंट याद करो, आपने पहला जो किया उसके अंदर पेरेंट एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल निकाले थे और वाटर मॉलिक्यूल निकालने से आपको मेटाइक एसिड मिला था। अब यहाँ पर पेरेंट एसिड में से आप ऑक्सीजन निकाल रहे हो, सो ऑक्सीजन निकालने से यहाँ पर आपको मिलेगा फॉस्फोरस एसिड। मतलब ये जो था आपका पेरेंट एसिड वो है आपका ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें से ऑक्सीजन निकालने से आपके पास में जो आता है वो है आपका फॉस्फोरस एसिड, मतलब ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। पेरेंट एसिड में से ऑक्सीजन निकलने से फॉस्फोरस एसिड मिलता है हमें। तो ये पहला हमारा स्टेप हो गया जो हमने इक एसिड में किया था। नाउ विल गो विद द सेकेंड स्टेप। सेम वे जैसे हमने यहाँ पर इक एसिड में पेरेंट एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए थे, अब हम यहाँ पर हमारा जो पेरेंट एसिड है, मतलब कि जो अस एसिड है, उसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे। मीन्स 2 molecule of orthophosphorus acid means H3PO3. So here you get H6P2O6. Now same thing, whatever you have done here, you have removed the water molecule from the same, you are doing for us acid also. Remove 1 water molecule, you get H4P2O5. Now this H4P2O5 is your pyrophosphorus acid. स्टूडेंट यहाँ पर आपको मिला था पायरोफॉस्फोरिक एसिड, यहाँ आपको मिल रहा है पायरोफॉस्फोरस एसिड। दोनों के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। आपको याद इतना ही रखना है कि जब आप अस एसिड बना रहे हो तो पेरेंट एसिड में से एक ऑक्सीजन रिमूव करना है और उसी को अस एसिड के लिए एज अ पेरेंट एसिड कंसिडर करना है और फिर उसके बाद में उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल के पायरोफॉस्फोरस एसिड आपने बनाया। अब उसी तरह से आपने फिर से आपका जो पेरेंट एसिड है, मतलब कि जो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, वो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में से आप ऑक्सीजन निकाल रहे हो, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। Now remove 1 oxygen atom, you will get H3PO2. अब जैसे आपने यहाँ आगे पेरेंट एसिड में से ऑक्सीजन रिमूव किया था तो पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड मिला था। अब यहाँ पर उसके बाद
आपने यहाँ पर जो किया था उसमें हाइपोफॉस्फोरिक एसिड मिला था, ऑक्सीजन रिमूव करने से पायरो में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो हाइपो मिला। ठीक है, सो यहाँ भी आपने वो ही करना है, H3PO2 दैट इज योर हाइपो H3PO2, क्योंकि आपने ऑक्सीजन को रिमूव किया है जो आपने एक एसिड में किया था, यहाँ रिमूव किया तो हाइपो मिला। सेम वे यहाँ आपका ये जो आंसर है वो है हाइपो फॉस्फोरस एसिड। स्टूडेंट, मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से याद रह गया होगा कि किस तरह से ये आपको करना है। अब उसके बाद में मेटा, ऑर्थो, पायरो वो सब कब लगता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। अब यहाँ एक बात ये रखनी है हमें याद, नोट करके रखो, मोस्टली जो पेरेंट एसिड होता है, पेरेंट एसिड एंड इट्स both is having ऑक्सीडेशन स्टेट सेम। एक बात ये ध्यान में रखनी है, वो मैं अभी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय बताऊंगी कि पेरेंट एसिड में से अगर हमने यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव किया तो ऑर्थो में से हमने ईक एसिड में से अस एसिड बनाया, उसी तरह से यहाँ पर हमने निकाला तो अस एसिड बनाया, वो तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम होता है। एंड pyro and meta, pyro and meta are mostly tetravalent, tetravalent, pyro and meta जो है वो टेट्रावेलेंट होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे स्टूडेंट्स कि पायरो एंड मेटा टेट्रावेलेंट होता है, पेरेंट एसिड और उसके जो कंपाउंड होते हैं उस दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है। अब इसके बाद हम आगे जाता है कि मेटा कहाँ लगाना है हमें, ऑर्थो कहाँ लगाना है, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मेटा, मेटा कहाँ पर लगाएंगे हम, सो 1H2O मॉलिक्यूल, मतलब आपने क्या किया, पेरेंट एसिड में से रिमूव 1H2O मॉलिक्यूल, एक H2O मॉलिक्यूल जब हमने रिमूव किया then we'll get that oxy acid, then we are saying it is a meta। पेरेंट एसिड में से 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने से जो मिलता है वो है हमारा मेटा। अब उसके बाद में ऑर्थो, ऑर्थो कहाँ लगाते हैं, ऑर्थो मीन्स फ्रॉम which acid meta form is possible, meta form is possible। अब इसके बाद में पायरो, पायरो कहाँ लगाएंगे स्टूडेंट्स हम, पेरेंट एसिड
molecule. Two molecule of parent acid remove means minus one water molecule. Minus one water molecule. Then the product is pyro. Next one, it is अस एसिड और ईक एसिड का डिफरेंस भी एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं हम. ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम अस एसिड, then it becomes hypo. So अस एसिड में से ऑक्सीजन रिमूव करने से हाइपो मिलता है और इसके बाद में ऑक्सीजन अगर रिमूव होता है फ्रॉम अस एसिड, ऑक्सीजन रिमूव फ्रॉम अस एसिड, then we get ईक एसिड. ईक एसिड. Student,